about non-student youth? Nothing, no mention. No mention about youth welfare, real youth welfare. Just 100 crores youth leadership. This is not development. This is not what is crucial to the nation, that the human resource must be brought onto a level of minimum prosperity where we will have some dignity. Today we don't have dignity. And if my brother, the poor person, doesn't have dignity, I don't have dignity either. Then one or two small things I will refer to: smart cities. 100 smart cities, very welcome step, but let them not become what my friend here said about the builder's paradise. Let them become innovation centers. Innovation centers must drive the smart cities, not money. Innovation centers, please build your IITs, IIMs, standard universities as the central to these smart cities, so that they can contribute to their growth, healthy growth. Look at Boston. Boston University's contribution. Please, couple of minutes. Boston University, the way it has contributed to the development of Boston. If you see that, you can understand what I am trying to suggest. And what have you done to Madam Minister of State? What have you done to your colleague Smriti ji? Smriti ji, the long-suffering daughter-in-law, the Bahu, in the TV serial, does she have to suffer here also? You promised her, half of the promise has been given as the allocation. What a pity that education, which has to be the thrust for a knowledge society that you want to establish in this country, education gets short shrift under Modi's leadership. And I will end by drawing attention to a couple of things about my state, Odisha. Modi ji in Bhubaneswar said, why 8 lakh Odias are there in Surat? 7 minutes is over. Please. Odisha, please try two things. Please try to conclude. Modi ji said about 8 lakh fellows, why are they working in textiles in Surat? Why are you not, why this government is incompetent, their state government is not able to provide jobs for them? I thought when Modi ji would plan for textile mega clusters, should have thought of Odisha so that these 8 lakh people can come back to Odisha as envisaged by him. Please take note of it. And please take note of another things. 5 tourist centers, at least one be given to Odisha for a Buddhist circuit, or if you can't find for Buddhist circuit, for an anthropological tourism circuit. Thank you very much. Thank you. P. Ashwini Kumar. सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने एक बहुत ही अहम डिबेट पर रिक्वेस्ट नहीं किया, कैन यू स्पीक फ्रॉम हियर? सबसे पहले तो मैं सभापति जी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस अहम डिबेट पर भाग लेने का मौका दिया। बजट पर डिबेट इसलिए अहम समझी जाती है कि बजट की प्रस्तावना के द्वारा सरकारें देश के भविष्य के प्रति अपनी कल्पना दर्शाती हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, उनका पहला बजट है। मैं जानता हूं कि उन्होंने भरपूर कोशिश की होगी कि लोगों के एहसास और भावनाओं के प्रति वो पूरा उतर सकें।
मगर अगर आप उनके भाषण की पहली पंक्तियां पढ़ें तो उसी से ये जाहिर हो जाता है कि वे स्वयं ही आश्वस्त नहीं हैं अपनी बजट की प्रस्तावनाओं से। उन्होंने कहा है पहली पंक्तियों में कि मैं अपनी और अपनी सरकार की सीमाएं जानता हूं और बहुत सी एक्सपेक्टेशंस इस बजट से देशवासियों को नहीं होनी चाहिए। मगर अगर इतने तक ही अपने आप को सीमित रखते तो मैं उनकी बात समझ सकता था, पर उन्होंने कहा कि उनकी सीमाएं इसलिए निर्धारित हैं क्योंकि यूपीए सरकार ने खजाने खाली छोड़े और अर्थव्यवस्था इतनी दोभर थी कि वो उसको सुलझाने में सक्षम अपने आप को आज नहीं महसूस कर रहे। मैं समझता हूं कि इससे ज़्यादा निराधार बात और कोई नहीं हो सकती। मेरी भावनाएं या मेरे विचार जो मर्जी हों, मगर आंकड़े और तथ्य जो हैं वो सत्य को दर्शाते हैं। हमने फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल किया, 4.1% तक उसको सीमित किया। करंट अकाउंट डेफिसिट को जो 4.5% के आसपास था 1.7% तक लेके आए। भरे हुए खाद्यान्न छोड़े, 315 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व छोड़ा, इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ाया, सेविंग्स रेट बढ़ाया और करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर किया। गरीबी रेखा पर तो बहस हो सकती है, पर इस पर कोई बहस नहीं हो सकती कि जिस तरह की गरीबी देशवासी बहुत सालों तक देखते आए, उस तरह की गरीबी से हमने बहुत से लोगों को निजात दिलवाई। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि किसी व्यक्ति का जीवन, किसी देश का जीवन, किसी देश की प्रगति की गाथा उसके अतीत से तोड़कर नहीं की जा सकती। उसी तरह किसी भी सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो पिछली सरकारों की उपलब्धियां को नज़रअंदाज करके नहीं की जा सकती। जो बुनियाद हमने रखी थी उस बुनियाद पर घर बनाने का, घर को पुख्ता करने का अधिकार आपका है, पर अगर आप उस बुनियाद को ही झुठलाने लगेंगे तो कहीं ना कहीं देश की जनता आपसे ये सवाल करेगी कि क्या आखिर 2 महीनों में ही आपने सब कुछ कर दिया जो आज आपके इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े बताते हैं। तो कम से कम इस सदन में, जिसको हम इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी कहते हैं, उसको खोना नहीं चाहिए। मेरी ऐसी अपेक्षा अपने बहुत नज़दीकी मित्र और बहुत ही आदरणीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी से थी। लीडर ऑफ द हाउस, आई एम सॉरी, लीडर ऑफ द हाउस। मैं एक बात और अपनी रखना चाहता हूँ। हमने कई बार ये सुना है कि साहब इस पिछली सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस था, इसलिए कुछ काम नहीं हो पाया। अगर कुछ काम ना हो पाया होता तो क्या ये उपलब्धियां जो आंकड़े दर्शाते हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे में जिनका व्याख्यान है, क्या वो आंकड़े सत्य कहलाते? नहीं। इसलिए आज मैं समझता हूं कि पार्टीशन राजनीति से ऊपर उठ के कई बातें जो देश की उपलब्धियां हैं उनको हमको स्वीकार करना चाहिए। मैं 2-4 मुद्दों के ऊपर अपनी बात रखूंगा क्योंकि बहुत बातें हो गई, मैं किसी बात को दोहराना नहीं चाहता। मैं ये जानता हूं कि वित्त मंत्री ने बहुत बड़े पैमाने पर राजस्व जुटाने की बात की, पर मुझको ये बात समझ नहीं आती कि अगर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 13% मिनिमल नॉमिनल टर्म्स पे बढ़ रहा है तो टैक्स रेवेन्यूज 20% कैसे बढ़ सकते हैं? ये कई शब्दों का खेल है, मगर ये बात मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा, देश के अर्थशास्त्री हमको ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें गलती है। और अगर नॉन कॉर्पोरेट टैक्स रेवेन्यूज 27% और सर्विस टैक्स रेवेन्यू 31% बढ़ने हैं तो फिर टैक्स जीडीपी रेशो ऐसी क्यों है? कहीं ना कहीं वित्त मंत्री जी को ये बात हमको बतानी पड़ेगी।
एक और मुद्दा जो मैं खास तौर पर उठाना चाहता हूं, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर के मुताल्लिक 6.6% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का, और दुनिया के जितने भी टूरिस्ट हैं उनका मात्र 0.5% भारत में आता है। 40 करोड़ नए रोजगार टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में देश में पैदा होते हैं हर साल। तो क्या केवल ई वीज़ास देने से इस क्षेत्र की भरपाई हो पाएगी? बहुत कुछ और करना पड़ेगा जिसका बजट में कहीं उल्लेख नहीं है। डिफेंस के मुताल्लिक जो एलोकेशंस होती आई हैं वो हुई हैं, मगर क्या साइबर सिक्योरिटी के मुताल्लिक हमने कोई विशेष इसकी चर्चा की? नहीं की। क्या हम ये मान के चलें कि चाइना, जिसके साथ आज हमारी स्ट्रेटेजिक पैरिटी 1:8 की रेशो में है, यानी हर पैमाने पर चाइना 8 गुना हमसे आगे है, क्या इस तरह की एलोकेशन से वो जो दरार है, वो जो गैप है हमारी और चाइना की डिफेंस पैरिटी में, वो कम हो सकेगा कि नहीं? मैं मानता हूं कि डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव में आदमी ये कहता है कि डिफेंस पर इतना बजट गरीब मुल्क नहीं दे सकते या डेवलपिंग मुल्क नहीं दे सकते, मगर आज अगर हम अपने बॉर्डरों पे हकीकत को समझें और देखें कि सिक्योरिटी थ्रेट कहाँ से कब आ सकता है, तो हम डिफेंस की जो ज़रूरतें हैं उनको नज़रअंदाज कतई नहीं कर सकते। मेरा अनुरोध है माननीय वित्त मंत्री जी से कि इस पर ख़ास ख्याल करें, ध्यान दें, ताकि हम अपने देशवासियों को अपनी सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स के मुतल्लिक आश्वस्त कर सकें। बुज़ुर्गों के मुतल्लिक मेरा एक ख़ास जज्बा रहा है। मैं समझता हूँ कि आने वाले सालों में बहुत बड़ी मात्रा में देश के बुज़ुर्ग जो होंगे उन पर ख़ास ध्यान देने की हमारी ज़रूरत है, और ये मैं एक बाईपार्टिसन बेसिस पर ये बात कह रहा हूँ। $1 ट्रिलियन की हमारी इकॉनमी है, तीसरा सबसे बड़ी इकॉनमी हम अपने आप को मानते हैं, और आने वाले सालों में ये भी कहा जा रहा है कि भारत दूसरे नंबर पर आएगा। तो क्या $1 ट्रिलियन वाली इकॉनमी का मुल्क अपने बुज़ुर्गों की तरफ और ध्यान नहीं दे सकता? ये सवाल है, एक ये बुनियादी सवाल है। मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो जिक्र हम बार बार कर रहे हैं 100 स्मार्ट सिटीज़ का, बहुत अच्छी बात है, इन शहरों की ज़रूरत है, मगर स्मार्ट सिटीज़ बाय डेफिनेशन आर प्रेमिस्ड ऑन द यूज़ ऑफ एडवांस्ड IT टेक्नोलॉजीज़। इसके बारे में ये बहुत विस्तृत चर्चा दुनिया भर में हो रही है कि स्मार्ट सिटीज़ की ज़रूरत किन मुल्कों में है और इसका निजता के अधिकार पर जो लोग वहाँ रहेंगे उस पर कैसा असर पड़ेगा। हर चीज़ मॉनिटर होती है स्मार्ट सिटीज़ में। क्या हम ऐसा देश चाहते हैं जहाँ हमारी हर निजता के अधिकार के ऊपर आक्रमण हो? क्या इसके मुतल्लिक जब हम स्मार्ट सिटीज़ की बात कर रहे हैं हमने कोई ध्यान दिया? आपने 7,060 करोड़ की व्यवस्था की है पहले साल में। एक टीवी डिबेट पर जब मैंने कहा कि ये बहुत कम है, तो मुझसे कहा गया कि आप इस बात को समझते नहीं हैं कि ये तो पहले साल की प्रस्तावना है। तो अगर आप 100 सिटीज़ की बुनियाद पहले साल में रखना चाहते हैं जो आप बजट में कह रहे हैं, तो क्या एक स्मार्ट सिटी का आधार 70 करोड़ रुपए में रखा जा सकता है? इतने में तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी नहीं बनती। तो जब हम टोकनिज्म की बात करते हैं, एक दिखावे की बात करते हैं, तो उसमें कोई असत्य बात नहीं है। 29 स्कीमें आपकी 100 करोड़ की स्कीमें हैं। लोग कह रहे हैं कि $1 ट्रिलियन बजट विद 100 करोड़ माइंडसेट। मैं समझता हूं कि ये कोई बहुत अच्छी छवि सरकार की नहीं दर्शाता। ये 100 करोड़ की बात, 61 करोड़ महिलाएं जिस देश में हों, वहाँ 200 करोड़ रुपया महिलाओं की सेफ्टी के बारे में आपने जिसका प्रावधान किया है, ये खिलवाड़ है लोगों के एहसास के साथ या मजाक है देश के साथ? 200 करोड़ रुपया आप स्टैचू के लिए देते हैं, दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, मगर उसके मुकाबले में आप 61 करोड़ महिलाओं की सिक्योरिटी या उनके उत्थान के लिए 200 करोड़ की प्रस्तावना करते हैं, ये उचित बात नहीं। आपने एक्सपेंडिचर कमीशन की बात, एक्सपेंडिचर कमीशन क्या नई चीज़ आपको दिखाने वाला है जो हमको जिसका मालूम नहीं है, जिसका फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट में जिसका आधार नहीं? एक और लेयर ऑफ ब्यूरोक्रेसी स्थापित करने के अलावा ये एक्सपेंडिचर
कमीशन और कुछ करने वाली नहीं है। इसकी तनख्वाहें, इसके खर्चे इसकी ज़रूरत से ज़्यादा होंगे। मैं समझता हूँ इस पर आप ध्यान दीजिए। एक्सपेंडिचर कम करना है, इसमें किसी को कोई गिला नहीं है, मगर किस तरह कम करना है इस पर दो राय हो सकती है और मैं अपनी राय व्यक्त कर रहा हूँ। हमने सोलर एनर्जी की बात की। ऊर्जा सुरक्षा देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत अच्छा कदम हमारी सरकार ने उठाया था सोलर मिशन बनाकर, जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन। बहुत बड़े पैमाने पर हम इस पर काम करना चाहते हैं, मगर आपके जो प्रावधान हैं वो मात्र 0.6% हैं सारे बजट में। तो जो आप हर गांव में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखते हैं, पर जब सोलर एनर्जी की बात आती है तो टोटल अमाउंट कमिटेड इज 0.6%। ये बातें कहने की एक है और करने की दूसरी है। मैं ये चाहूँगा कि कम से कम इस सदन में जब देश के वित्त मंत्री बजट में प्रस्ताव रखते हैं तो ऐसे प्रस्ताव रखें जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, लोग जिसकी विश्वसनीयता में लोग यकीन करें। इसमें कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या अर्थशास्त्री होने की जरूरत नहीं है। केवल आंकड़ों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि देश के एहसास के साथ कई मुद्दों पर इस बजट की प्रस्तावना में खिलवाड़ हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस बजट के बारे में दो चार चीज़ें और कहना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, मैन्युफैक्चरिंग जोन्स पर आपने ध्यान दिया है, बहुत अच्छी बात है। मैन्युफैक्चरिंग का जब तक मात्र 0.2% ग्रोथ हुई है इंडिया के विनिर्माण क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में, जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ेगी, जिसकी बुनियाद यूपीए सरकार ने रखी थी जब हमने जापान के साथ $100 बिलियन का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की थी, उसको आपने आगे बढ़ाया, अच्छी बात है। मगर हम सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जो जापान की यात्रा है वही स्थगित हो रही है, और वो स्थगित नहीं होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा रिश्ता हमने जापान के साथ जोड़ा है। बहुत बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी और कैपिटल की जो कंट्रीब्यूशन है जापान कर सकता है, और मैं चाहूँगा कि इस मैन्युफैक्चरिंग रीजन्स को आगे बढ़ाने में जापान के साथ एक खास ताल्लुक बढ़ाया जाए। रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन की बात बहुत हुई और ये हमको बताया गया कि हम रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को निरस्त करेंगे। अच्छा है आपने नहीं किया। कोई भी वित्त मंत्री ऐसा नहीं कर सकता जहां 40,000 करोड़ के राजस्व की बात है। मगर इसमें दो राय हो सकती हैं कि रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मगर 40,000 करोड़ अगर आप दे देते तो आप पे क्रोनी कैपिटलिज्म का इल्जाम लग सकता था। अच्छी बात है आपने ये नहीं की, मगर साथ ये हमको बताएं कि ये जो इतने बड़े पैमाने पर आप इस देश को सब्ज बाग दिखा रहे हैं, उसका पैसा आएगा कहां से? मैं जानता हूं कि बजट के प्रावधानों में आंकड़ों का खिलवाड़ होता है, मगर इतना खिलवाड़ भी नहीं कि देश का बच्चा बच्चा जान जाए कि इसमें कोई सत्यता नहीं है। आखिर में मैं एक ही बात कह के अपनी बात ख़त्म करूंगा। अच्छे दिन आएंगे या नहीं आएंगे, मैं चाहता हूं आएँ, सारे देश के लिए आएँ, सारे देशवासियों के लिए आएँ। और जैसे किसी ने कहा है, किसी ने बहुत अच्छी बात कही, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। कब तक इंतज़ार करना होगा अच्छे दिनों का? मैं मानता हूं आप ये कहते हैं कि 2 महीने हुए हैं, 3 महीने हुए हैं, मगर ये जो आपने बुनियाद रखी है ये 2-3 महीनों की बुनियाद नहीं है, ये नक्शा है देशवासियों के सामने जो आप 5 साल में करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इसके मुताबिक तो बहुत लंबे समय तक अच्छे दिन आने वाले नहीं हैं। इन शब्दों के साथ मैं उपसभापति जी आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने। थैंक यू। श्री राम नारायण दूधी जी, आपके समय 7 मिनट है। सभापति महोदय, मैं पहले तो आपको बहुत ही आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस देश की महान सदन में बोलने का मौका दे रहे हैं। समय नहीं, और मेरा ये पहला भाषण है जो इस सदन के अंदर दे रहा हूँ।
सभापति महोदय, इस देश के महान देश के अर्थशास्त्री हमारे वित्त मंत्री जी ने भारत का ये प्रथम बजट रखा है और महोदय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट जनादेश ही नहीं, एनडीए पार्टी को 136 सीटें देकर एक इतिहास रचा है तथा ये स्पष्ट संकेत है कि देश की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी में इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया है। इस सरकार का ये पहला बजट तथा इसमें सभी वर्गों एवं देश के विकास को दृष्टिगत रखते हुए पेश किया है। वाकई ये देश की आज़ादी के बाद का पहला बजट है जिसको पेश किया गया है। महोदय, देश सर्वोपरि है और दुनिया के किसी भी देश को चलाने के लिए इस देश का आर्थिक प्रबंधन सबसे अहम होता है, लेकिन बड़े तकलीफ और पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि जब 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए ने सत्ता संभाली तो उस वक्त देश के बड़े जो हमारी पिछली सरकार थी और पिछली सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के जो हमें मिला दोष और देश आर्थिक कुप्रबंधन के दौर से गुजर रहा है। देश की जीडीपी विकास दर पिछले 2 साल से 5% से भी कम है और फूड इन्फ्लेशन रेट लगभग 10% पर था। गौर करने वाली बात है कि 2004 में जब एनडीए ने सरकार छोड़ी थी तो ये आंकड़े इसके उल्ट थे। उस वक्त विकास दर लगभग 10% थी और इन्फ्लेशन रेट 5% थी। इस विषम परिस्थिति में भी इतना संतुलित और हर वर्ग को ध्यान में रखकर बजट देने के लिए मैं सर्वप्रथम श्री जेटली जी का अभिनंदन करता हूं और उम्मीद ही नहीं विश्वास भी जताते हैं कि हम आर्थिक कुप्रबंधन की भयंकर तूफान की चपेट से भी देश की कश्ती को बाहर निकाल पाएंगे। आज जब हम देखते हैं सभापति महोदय, फिजिकल डिफिसिट आज 4.5% जीडीपी पर खड़ा है। इस फिजिकल डिफिसिट को कम करते हुए इसे अगले बजट तक 4.1% तक लाने का टारगेट जो रखा है वह वाकई आने वाले वक्त के अंदर हम इसको पार कर पाएंगे। सभापति महोदय, आज जब हम हालात को देखते हैं तो हमने सरकार के नेतृत्व सौंपा है। उस हालात में भी वित्त मंत्री जी ने संतुलित और कृषि के साथ साथ उद्योगात्मक विकास को ध्यान में रखकर जिस तरह का बजट पेश किया है वह सचमुच प्रशंसनीय है। सभापति महोदय, भारत माँ को तब सबसे ज़्यादा पीड़ा होती है जब उसके बेचारे किसान बेटे आर्थिक तंगी की वजह से खुद अपनी हत्या कर लेते हैं। आज ये हमें हैरान करने वाली बात है कि देश के 67 साल में सबसे ज़्यादा किसी पार्टी ने शासन किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने शासन किया है और कांग्रेस पार्टी के शासन के अंदर जब हम किसानों की आर्थिक स्थिति की ओर दृष्टिपात करते हैं तो सभापति महोदय, यदि केवल 2013 के आंकड़े को भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से तंग आकर के किसानों ने करीबन 12,000 आत्महत्याएं अपने आप को ख़त्म किया है। ये एक बहुत बड़ी शोचनीय बात है। ये इस प्रकार का वक्त क्यों आया? आज इस देश के अंदर जब आज़ादी मिली हमें, उस आज़ादी के वक्त के अंदर इस देश के किसानों की क्रेडिट जो थी वो 60 से 70% थी, यानी कि 75% इस देश के अंदर किसान है और उन किसानों का जो 6 लाख के गाँव और गलियां से किसान ये रास्ता जो दिल्ली का आता है वो उन किसानों के गाँव से आता है। जब किसान की माली हालात ठीक होगी तो ये देश
माली हालात, देश की माली हालात ठीक होगी। मगर बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उसके बाद में हमने 67 साल के बाद के अंदर आज किसान की जो स्थिति है, उनकी जो हैसियत है, उनकी जो क्रेडिट है, वो केवल मात्र 13% के नियर अबाउट आ गई है। ये किस और संकेत करता है? क्या हमने उन बड़े बड़े जिनकी जो उद्योगपति थे या जो दूसरे लोग थे, वो मतलब केवल 15% पर जिस आज़ादी मिली थी उस वक्त में उसकी हैसियत थी, आज उनकी हैसियत बढ़ करके 60-70% तक पहुंच गई है। ये जो गैप आए दिन गैप होता जा रहा है, ये किस बात का संकेत कर रहा है? आज अध्यक्ष महोदय, आज हम देखते हैं कि देश के अंदर दो जमातें पैदा हो गई है, एक बड़े पूंजीपति और दूसरे गरीब से गरीब होता जा रहा देश। आज आपने देखा होगा, आज हमारे आदिवासी भाई जिनको खाने की रोटी नहीं, जो हमारे लोग गाँव के अंदर वेतन करते हैं, उनको रहने के लिए मकान नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, उनको शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आज हमें कुछ भी नहीं। आज शिक्षा किस बात की हो रही है? निजी प्राइवेटेशन सेक्टर के अंदर शिक्षा बढ़ रही है। गांव का गरीब उन प्राइवेट के अंदर पढ़ा नहीं पाते और उनके लड़के सर्विस और नौकरियों के अंदर नहीं जा पाते हैं। ये किसने असमानता पैदा की? इस बात को भी आज गाँव के अंदर और गरीबों के अंदर जब बात होती है तो उनका सीधा टारगेट ये जाता है कि इस देश के अंदर जिन्होंने सबसे ज़्यादा राज चलाया, जो सरकार चलाई, उन लोगों ने असमानता पैदा की। मैं इसलिए निवेदन करना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय कि आज हमें उन लोगों की तरफ हमारा बजट अंकित करता है, उन लोगों की करने के लिए, काश्तकार के लिए आज इस बजट के अंदर जो जिस प्रकार का लक्ष्य रखा गया है, अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहूँगा क्रेडिट बजट में शामिल कर सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति के प्रति अपनी संवेदनशीलता को दर्शाया है और ये 8 लाख करोड़ रुपया का जो प्रोविजन रखा है, जो बैंकों के अंदर उन्होंने काश्तकार के लिए दिया है, वो एक वास्तव में सराहनीय बजट है। मैं ये बात भी आपको निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की कि हम नरेगा को कृषि के साथ जोड़ेंगे और कृषि के साथ जोड़ने का जब बजट के अंदर प्रावधान किया तो हमारे गांवों के अंदर जो मतलब परिसंपत्तियां बनेगी, हमारे जो काम हो गए, खेतों के अंदर जो काम हो गए और वो मतलब काम से धोरापाली बनेंगे, वो एक किसान के लिए असर पैदा होगा, उनकी संपत्तियां बनेगी। और इन्हीं के साथ मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि काश्तकार के जो जिस प्रकार का लान दिया जाता है, मैं चाहता हूँ कि उस लान के अंदर अनुदान बढ़ाया जाए। जो हमारी पहली बार है मेरा 2 मिनट क्या साहब, अभी तो भूमिका ही पैदा नहीं हुई है। ये मैं तो गांव से आया हुआ आदमी हूँ, ठेठ उस गांव से जिस गांव के अंदर पानी की किल्लत, उस राजस्थान से आया हुआ हूँ, जो पानी की अभी मतलब और भी मुझे कहना है। अभी कुछ हमारे लोग कह रहे थे, नंदी नाला की बात कर रहे थे। मैं ये कहना चाहूँगा कि काश्तकार की समृद्धि लाने के लिए काश्तकार को अनुदान दिया जाए। आज एक ट्रैक्टर यदि लेता है, हमें धन्यवाद देना चाहूँगा, सामूहिक खेती के लिए 5 लाख रुपए का उन्होंने रखा है और 4% ब्याज का जो प्रावधान रखा है, उनके लिए भी हमारी सरकार धन्यवाद की पात्र है। मैं ये भी कहना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय कि आज एक ट्रैक्टर और इक्विपमेंट वगैरह यदि हम लेते हैं तो कम से कम 10 लाख रुपए लगते हैं और उनका ब्याज जो प्राइवेट बैंकों के जरिए होता है, चाहे वो भूमि विकास बैंक हो, वो 12 और 13% पड़ता है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार के ब्याजों की कमी की जाए और उनको मतलब रियायत दी जाए काश्तकारों के लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं ये बताना भी चाहूँगा कि मैं अभी मतलब मैं सीधा आता हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। नंदी जोड़ो अभियान हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने ये जो फैसला किया है वो वाकई बहुत ही सराहनीय है। ये हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ किसानों के लिए ये सराहनीय है। अभी कोई लोग कह रहे थे कि इससे प्रदूषण फैल जाएगा या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जिस गांव से आ रहा हूँ और उस गांव के अंदर प्रधानमंत्री जी की जो हमारे भावी प्रधानमंत्री उस वक्त के अंदर थे, नरेंद्र भाई मोदी की मीटिंग थी। कम से कम 2 लाख लोग जो अलग छापा के पगड़ी के लोग वहाँ थे, हजारों की संख्या के अंदर महिलाएं थी। वो ये केवल ये सुनने के लिए आए थे
क्या हमारा भावी प्रधानमंत्री के मुख से हम केवल इतनी बात सुन लें कि ये नदियां जोड़ी जाएगी? क्या वो मतलब वो एरिया जो राजस्थान का सबसे पिछड़ा हुआ, सूखा हुआ, जहाँ पानी आंखा में पानी हो सकता है मगर पीने के लिए पानी नहीं है, वो मतलब सस्ता खून और महंगा पानी वाला एरिया, जिन्होंने पानी की कीमत और जल को ही भगवान समझा है, मान्यता दी है, उस जगह जब उन्होंने ये ऐलान किया कि मैं यदि प्रधानमंत्री बन गया तो देश के अंदर मैं नदियां को जोड़ूंगा, और उस नदियों के जोड़ने पर वहाँ जितने भी लोग निकले थे, वहाँ हजारों की संख्या, लाखों की संख्या, कम से कम 2-2.5 लाख की संख्या थी, उनके चेहरे खिल गए थे। कब आएगी नदियां, कब नहीं आएगी, मगर एक वर्ड, एक लफ्ज पर वो इतने उत्साहित हुए, उन्होंने गगनभेदी नारे लगाए नरेंद्र भाई मोदी के कि इन्होंने हमारी बात को सुना है। अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं आज जिस गांव से मैं आ रहा हूं, पानी के लिए लाइनें लगती थी, एक एक घड़ा जो होता है उनका हमें टिकट देना पड़ता था। 1500 फुट पर हमारा आज पानी है, और ऐसे वक्त के अंदर आज मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी नदियाँ का जो सर्वे रखा है वो मतलब पूरा करें, और साथ ही हमें किसानों के लिए एक निवेदन करनी चाहूँगा आप लोग आपसे, क्योंकि हमारा राजस्थान जो है 3,72,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और देश के भूभाग का 10.5% है, और 7 करोड़ जनसंख्या का ये भूभाग है, और हमारे पास सतही जल केवल 1.15% है, जहाँ 5.5 करोड़ पशुधन है, और पशुधनों के पालने के लिए मैं ये इसलिए निवेदन करना चाह रहा हूँ कि इतना बड़ा भूभाग, इतनी बड़ी पशुओं की संख्या, और काश्तकार और पशुओं का एक साथ का जोड़ा है, और इसको बचाने के लिए और इस प्रदेश का विकास करने के लिए यदि सरकार हमारे एक विशेष दर्जा दिया जाए, और विशेष दर्जा के लिए मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे एक कहावत है, 100 साल के अंदर हमारे काल ही काल पड़ते हैं। 100 साल के अंदर जब 100 साल की हम गिनती करते हैं तो 7 काल 27 जमाना 63 कोरा काचा, 3 काल एड़ा पड़े जिनमें महीने पूत मिले नहीं फाचा, ये हमारी ये शताब्दी की एक शब्दावली है। उसके अंदर जो काल है वो मतलब इस प्रकार से मतलब उनका किया गया है, और उसके अंदर जब कोई काल की माँ से पूछा कि काल का परमानेंट एड्रेस कहाँ है, सभापति महोदय, मेरा दुर्भाग्य है कि हमारे राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं दी गई, जबकि दूसरी भाषाओं को क्या मान्यता है, मगर मैं मेरी मारवाड़ी भाषा के अंदर ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जब काल से पूछा, काल की माँ ने, भाई तू कहाँ मिलेला, तो कटे रहे है, तो वह मतलब कहो काल फाचो प्रत्युत्तर उत्तर दियो के पग पूंगल जड़ मालवे बाहिड़ बाहिड़ मेहर आतो जातो जोधपुर ठावो ठिकाणो जैसलमेर कटे थने नहीं मिलो तो उन जैसलमेर जोड़ा ने माई मारो परमानेंट एड्रेस है। इन वास्ते में 1100 लंबी सीमा जो राजस्थान की लग रही है, जहाँ टिबा है, मरुस्थल्या है, और उस प्रदेश को स्तरीकरण करने के लिए मैं ये भारत सरकार से, हमारे वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान के अंदर फ्लोराइड पानी जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी स्टेट है, उस स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा यदि फ्लोराइड वाला पानी मिलता है तो हमारे 1,21,133 गांव और ढाणियों के अंदर सबसे ज़्यादा पानी हमें फ्लोराइड को पीने को मिलता है। इस बड़ी योजनाओं की व्यवस्था करने के लिए हमारे राजस्थान के अंदर इतना संसाधन नहीं जिससे कि हम इस प्रकार की पुख्ता अरेंजमेंट कर सके, और इसके लिए हम निवेदन करना चाहते हैं कि भारत सरकार से कि वो उनका राजस्थान को एक विशेष दर्जे के आधार पर उनका मतलब पानी की योजनाएं, राजस्थान के टिबा स्थिरीकरण की योजनाएं, नंदी नाला को जोड़ने के लिए हमारी योजनाएं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने अपने पहले बजट के अंदर पानी की महत्ता को समझते हुए राजस्थान के अंदर तमल नदी के जितने भी सहायक नदियां हैं उनका जोड़ने का पहले ही प्रयास करना शुरू कर दिया है। इन वास्ते वो धन्यवाद की पात्र है। साथ ही प्लीज यस में 1 सेकंड में सर, आपकी पार्टी के समय खत्म हो गया और एक स्पीकर पार्टी की तो कोई बात सर 2 मिनट पता दे दीजिए। मैं साथ ही मैडम मैं किसानों के लिए
प्लीज 15 मिनट्स और एक प्लीज। एक मिनट के लिए मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, किसानों की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में एम स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की जाए। आज किसानों के लिए लागत मूल्य बहुत बढ़ गया है। आज कम से कम 2000 रुपये में 1 कुंटल गेहूं पैदा होता है। जब धरती पर मतलब जाते हैं, उनके साथ ही किसानों के नई कनेक्शन कृषि कनेक्शन के अंदर सब्सिडी देने का भारत सरकार द्वारा होना चाहिए और है। पशुओं को बचाने के लिए कारक के अंदर अनुदान देना चाहिए। हमारे Thank यहाँ you. मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे उन सेठ और भूमाशाहों को जिन्होंने हजारों की संख्या के अंदर राजस्थान के बेचारे पशुओं को गौशालाओं के अंदर इकट्ठा करके वो गौशालाओं के अंदर मतलब उनको अनुदान देके बचाया और आज बचाते जा रहे हैं। आज आप जानते हैं एक लाख गौशाला, 1 लाख पशुओं की गौशाला हमारी पतमेड़ा, हमारी जगह जगह इस प्रकार के आज हिंदुस्तान के अंदर इस प्रकार के गौओं को बचाने के लिए जो 5.5 लाख करोड़ पशु है उनको बचाने की यदि व्यवस्था करने हैं तो भारत सरकार हमें अनुदान दे और विशेष पैकेज राजस्थान को दे। बहुत बहुत धन्यवाद, हमें मुझे समय दिया। बजट पर चल रही है तो सदस्य यही रहे और बाकी भी सदस्य आएंगे। 8 बजे के बाद यही बाहर खाने की व्यवस्था की है, भोजन मिलेगा सबको, तो यही रहे और सबका भाषण सुने, आनंद। यस डी राजा, श्री डी राजा 5 मिनट्स। Thank you, sir. I rise to place my party's critique of the union budget. Union budget is really the action plan of the government of the day for building the economy and for building the nation. The success of the budget primarily depends upon its impact on the life of the people at large. Look at the living conditions of our people in different regions of our country. I do not want to elaborate this point. My previous speakers